Hello student, welcome in biology class. Myself Priyanka Kesri, I am your biology teacher. Today I will teach you chapter number 8, how do organisms reproduce. In this chapter we will discuss the 9 part of this video. So in this video its topic name is there the female reproductive system. In female reproductive system consists of different parts: uterus, oviduct, ovaries, cervix and vagina. So all these parts are discussed with you in this video. Some external genitalia is also discussed in female reproductive system. So let us start. So today topic name is there female reproductive system. In female reproductive system we will discuss about the different part. First part is there the primary sex organ. Primary sex organ, that is the ovary. Ovary is the main organ. So this one is the primary sex organ. Now secondary sex organs are there the fallopian tube, uterus, cervix, vagina, labia, clitoris. So these parts are the secondary sex organ. But female reproductive system are divided into the two parts. First one is the internal genitalia and second was the external. Internal, it means inside the body, which organ are present in the female reproductive system. So these are called the internal genitalia, and some organ are there showing in outside, that's called the external genitalia. So internal genitalia like that ovary, fallopian tube, uterus, vagina, these parts are there internal genitalia, and external is there the vulva. Vulva consists of different parts: labia majora, minora, mons pubis, clitoris. So these are the external genitalia. Now female reproductive system consists of different glands also. One is there the Bartholin's glands and second is there the mammary glands. Bartholin's glands are present inside the secondary sex organs and mammary glands are present in their breast. So next topic is there the menstrual cycle. In menstrual cycle they are connected of these organ activities show the fertility period of female. This one is show the fertility period of female. Its meaning of this sentence is there: female get produce the egg from ovary, so they are fertile. और it means अगर वो ovary से egg का formation properly नहीं हो रहा है तो that's mean ना the it means menstrual cycle उसमें नहीं चले तो so this one is not a fertile. तो each woman have also a menstrual cycle performing in every month. So this activity show the fertility female period. So now next topic is there. So come in the topic female reproductive system. In female reproductive system it is concerned with the formation of ova, fertilization, fetal developments, childbirth. It is formed of following parts. देखिए फीमेल में जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंसिस्टिंग पार्ट्स है वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर योर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ ओवा. ओवा का फॉर्मेशन ओवरी करता है. सो दिस वन इज द पार्ट ऑफ फीमेल. ओवरीज इज ऑल्सो, सो दे कैन फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ ओवा. नाउ फर्टिलाइजेशन आर डन इन देयर द फैलोपियन ट्यूब. इन फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. सो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है. तो फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड फीटल डेवलपमेंट इन साइड द यूट्रस इन हेयर. सो फीटल डेवलपमेंट कंसिस्टिंग इन द यूट्रस. सो यूट्रस में जब फीटल, तो यूट्रस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड चाइल्ड बर्थ बाय द सर्विक्स टू वेजाइना. तो सभी पार्ट्स का एक अपना रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. सो जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं. So first part is ovary. We will discuss with you ovaries. So these are the primary sex organ of female. Ovaries जो है वो primary sex organ of female. And these are the one pair. ये जो होती है one pair में होती है. आप ये देख सकते हैं कि फिगर में दोनों तरफ जो है ये ovary है. So started there. The first point is there ovaries. Now first heading is there the ovaries. This one is the primary sex organ of the female. So these are one pairs. One pairs are there in hair side, one are there right side, one are there left side. So these are in one pair. Small size होती है, almond shape होती है, मतलब बादाम के शेप के जैसे होती है. और and whitish structure present in the pelvis of abdomen. Pelvis of abdomen one on either side of the uterus. देखिए ये जो पार्ट है वो क्या होता है, एब्डोमेन का पार्ट है. सो एब्डोमेन के पार्ट में
ये किस रीजन में प्रेजेंट है? दिस वन इज द पेल्विस रीजन. सो इन पेल्विस रीजन दे आर प्रेजेंट इन देयर. सो आइदर साइड ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस के दोनों किनारों पर होती है. सो ओवरीज आर द एब्डोमिनल इन पोजिशन. इंटरनली ईच ओवरी इज विथ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर प्राइमरी और ओवेरियन follicles. After puberty, every month a primary follicle transferred into the mature or Graafian follicle. During the time of puberty, puberty होने के बाद हर महीने every month जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो ट्रांसफ़र होती है मेच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स में. किस हॉर्मोन्स के अंडर में ये वर्क होता है? सो FSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. मैंने आपको हार्मोन्स के चैप्टर में FSH का फुल फॉर्म बताया था. दिस वन इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट मीन्स ग्राफियन फॉलिकल्स को दे कैन बी help for the matureness and excrete the ova on during the time of puberty. So each Graafian follicle in with developing the ovum. जितने भी Graafian follicles मतलब होते हैं वो developing ovum के लिए responsible होते हैं during the under of FSH. So function, what is the function of ovary? Ovary का function होता है formation of ova. Ovary जब ova का formation करती है उस process को कहते हैं oogenesis. It means the formation of ova from ovary. This process is known as the oogenesis by the germ cells of ovary. Now next is there the secretion of female hormones. Ovary दो hormones का secretion करेगी, estrogen and progesterone. Now let us diagram see it. So this one is the diagram of the female reproductive system. In this system you see all are the internal genitalia. ये जितना भी है सब internal genitalia शो हो रहा है. तो ये inside the body है. आप देखिए यहाँ पे दोनों यूट्रस, दिस वन इज द यूट्रस. यूट्रस के दोनों तरफ आप देख रहे हैं वाइट कलर का है ओवरी. ओवरी का जो शेप है वो आलमंड शेप में आपको दिख भी रहा है, जैसे बादाम होता है उस तरीके से. ओवरीज जो है वो पेयर में है. ठीक है, तो इसमें जो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो बहुत क्लियरली दिखा रही हैं. ओवरी जो है वो कनेक्टेड किससे होता है? ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू. दिस वन इज द ओवेरियन लिगामेंट. ये ओवरी को फैलोपियन ट्यूब और इससे कनेक्ट किया जाता है. बट ये जो लिगामेंट है ये कनेक्टेड है यहाँ पे ओवरी को, जो यूट्रस से लेके ओवरी को कनेक्ट कर रहा है. दिस वन इज द टीएस सेक्शन ऑफ ओवरी. ये ओवरी का टीएस सेक्शन है. इट मीन्स जब ओवरी आपकी ऐसी थी उसको कट कर दिया गया तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा. सो टीएस सेक्शन में आपने देख रहे हैं कि ये अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. ओवरी की जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम. नाउ जो अब उसके बाद जो दो लेयर्स आती हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा जो होता है वो कंसिस्टिंग होता है टू पार्ट से. सेंटर में जो पार्ट है जो ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होता है उसे हम मेडुला कहते हैं. और जो इसके किनारे किनारे जो पार्ट्स होते हैं वो आपको कॉर्टेक्स कहलाएगा. सो ओवरी की जो आउटर लेयर है जो आपको साइड में ब्लू कलर की पतली दिख रही है, दिस वन इज द जर्मिनल एपिथेलियम. जो चारों तरफ ब्राउन कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है उससे हम स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा के टू पार्ट्स होते हैं. एक जो इन द मिडिल ऑफ द जहाँ पे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड पार्ट है उसे हम मेडुला कहते हैं. और जो इसकी लाइनिंग होती है किनारे किनारे उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स. सो दिस वन इज द टीएस सेक्शन ऑफ द ओवरी. नाउ इन टीएस सेक्शन ऑफ ओवरी यू सी इन हेयर दिस वन इज द प्राइमरी फॉलिकल्स. प्राइमरी कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी, सेकेंडरी कन्वर्ट इनटू द टर्शरी, देन मैच्योर. मैच्योर होने के बाद जो यहाँ पे होती है ग्राफियन फॉलिकल्स दे कैन बी रप्चर एंड रिलीज द ओवा. ओवम आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ओवम यहीं से रिलीज हो जाता है. फिर जितना भी बचा हुआ मटेरियल होता है दैट्स वन द कॉर्पस ल्यूटियम. दिस वन इज द येलो कलर का जो आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज देयर द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज द ओविडक्ट. इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं. ये भी वन पेयर ऑफ होती है, राइट एंड लेफ्ट. दे आर इलोंगेटेड होती है, सिलिएटेड होती है, मस्कुलर होती है, ट्यूबुलर होती है. जस्ट क्लोज टू द ओवरी टू यूट्रस. ये जस्ट ओवरी और यूट्रस से बहुत क्लोज होती है. द आउटर पार्ट ऑफ ईच फैलोपियन ट्यूब लाइनिंग द क्लोज ओवरी have a wide aperture called the ostium and a number of finger-like projection called the fimbria to receive the ovum released from the ovary. Fallopian tube जो कनेक्टेड लास्ट पार्ट होता है वो फिम्ब्रिया होता है. फिम्ब्रिया का वर्क होता है सिर्फ ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको कैप्चर करना, कैच करना. नाउ फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब व्हाट इज देयर? फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन कैनाल. इसे हम फर्टिलाइजेशन कैनाल कहते हैं क्योंकि यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होता है. Conduction of ovum or zygote towards uterus by ciliary action and peristalsis.
Now see the diagram of. So this one is the diagram of the fallopian tube. आप मैंने वन साइड का लिया है, मैंने राइट साइड का लिया है. आप ये देख रहे हैं, ये जो येलो कलर की लाइनिंग पूरी आपको जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा है वो क्या कहलाता है? ओविडक्ट. ओविडक्ट को ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं. इसकी जो लेंथ होती है वो नॉर्मली 10 to 12 सेंटीमीटर होती है. और मैं इसके पार्ट्स आपको बताती हूँ. फैलोपियन ट्यूब का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया. अब फिम्ब्रिया का वर्क क्या होता है? ओवरी से जो ओवम रिलीज़ होता है वो फिम्ब्रिया उसको क्या करती है? कैच करती है. अब ये ओवम को लेके जाती है यहाँ तक. नाउ यूट्रस से यहाँ से धीरे धीरे स्पर्म जो होता है वो आता रहता है, ओविडक्ट से होता हुआ यहाँ पे वो फ्यूज़ हो जाता है. तो ये जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एम्पुला. सो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला में होता है. सो तो ओविडक्ट जो होती है वो ओपन कहाँ हो रही है? यूट्रस पे, यहाँ पे. इस पार्ट को हम कहते हैं ऑस्टिया. दिस वन इज़ द ऑस्टिया. तो फैलोपियन ट्यूब जब यूट्रस में ओपन होता है तो वो कहलाता है ऑस्टिया. फैलोपियन ट्यूब का वर्क होता है ओवरी से ओवम को कैच करना बाय द फिम्ब्रिया. फिम्ब्रिया से ओवम को ले जाके एम्पुला तक रखता है. फिर यहाँ से स्पर्म होता हुआ आता है. ये स्पर्म धीरे धीरे करके ओविडक्ट से यहाँ पे पहुँचता है और ओवम यहीं पे फर्टिलाइज हो जाता है. सो ये दिस वर्ड पार्ट इज कॉल्ड द एम्पुला. नाउ इन हेयर इज द नेक्स्ट पार्ट इज देयर. Now next part is there the uterus. Uterus is another name is there the womb. It is a large-shaped muscular and pear-shaped structure present in between the urinary bladder and rectum. Its internal lining is highly vascular and glandular. Is called the endometrium. So its lower and narrow part is called the cervix, which is open into the vagina. Uterus का function क्या होता है? Implantation. It means जब embryo एंडोमेट्रियम में मतलब डेवलपिंग ऑफ बेबी के जो फर्स्ट इनिशियल फेज होती है, जब फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन के ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम में. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन. देन आफ्टर प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का फॉर्मेशन होता है. देन फीटल चाइल्ड बर्थ. सो इट इज़ अ मस्कुलर कॉल्ड द मायोमेट्रियम हेल्प इन एक्सपेलिंग द बेबी फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ. ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जन्म देते समय बेबी को एक्सपेल करने के लिए मायोमेट्रियम हेल्प करती है. देखिए मायोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस की लेयर्स होती है. मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस. एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस. सो दिस वन इज द लेयर्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस पार्ट बाय द डायग्राम. So see the diagram of uterus. In uterus, this one is the part of uterus. अब यूट्रस में आपको ये जो डार्क ये जो दिख रहा है ये वाली जो अंदर, दिस वन इज़ द एंडोमेट्रियम. इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम. सो इट इज़ द इनर लेयर ऑफ यूट्रस. नाउ दिस वन इज़ द मायोमेट्रियम. दिस वन इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस. ये उभरा वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे फंडस. FUNDUS. दिस वन इज़ द फंडस. यूट्रस जो होता है वो ओवेरियन लिगामेंट्स और फैलोपियन ट्यूब दोनों से कनेक्टेड होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब यहीं पे आके ओपन होती हैं. नाउ यहाँ पे ही जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डेवलप होता है, यहीं पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. सो दिस वन इज़ कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट इन हेयर. इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. इट मीन्स एम्ब्रियो क्या हो गया? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया है. यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होगा, प्लेसेंटेशन फॉर्मेशन होता है, और जब बेबी पूरा कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो मायोमेट्रियम की मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जिससे ये वाला स्पेस ओपन हो जाता है और बेबी नीचे आ जाता है. अगर साइड व्यू देखा जाए तो साइड व्यू में क्या होता है कि सपोज जो कोई फीमेल बॉडी में यूट्रस की पोजीशन इस तरीके से है. इसके बैक साइड जो होता है वो रेक्टम होगा और एंटीरियर साइड जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है. सो यूट्रस आर देयर सिचुएटेड. सो दिस वन इज़ द यूट्रस, दिस वन इज़ द रेक्टम. अगर साइड व्यू से देख रहे हैं तो दिस वन इज़ द यूरिनरी. इट मीन्स रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूट्रस की पोजीशन होती है.
Now next part is there the vagina. Vagina, it is a long muscular tubular structure which extend backward from the cervix. Uterus finally open outside by vaginal aperture in the vestibule. So vagina का जो function होता है वो क्या होता है कि copulation canal or semen and discharge during the copulation. It also acts birth canal. Baby passes through during the childbirth. Now I am reading all this part in here, and after this part we will discuss by the diagram. So vulva is the next part is there. This one is the external genitalia of female, and it consists a depression called the vestibule. Two pairs of labia, pubis hair, vestibule has separate urinary aperture and vaginal opening. And two glands are there, the Bartholian and mammary glands. So Bartholian glands, what is there? These are the one pair small size glands present on sides of vagina and secrete mucus to lubricate the vagina during the copulation. Now mammary glands, these are one pair of rounded uterus present on ventral thoracic wall. Each are erectile nipple at the center which has a number of opening of milk duct which carry the milk from the mammary glands. Size of mammary glands or breast increase under the stimulation of फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड द एस्ट्रोजन एट प्यूबर्टी. देखिए जो बार्थोलियन ग्लैंड्स होती हैं वो वेजाइना में प्रेजेंट होती हैं, वेजाइना के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं. इनका वर्क होता है म्यूकस का सिक्रीट करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन. कॉपुलेशन का मतलब होता है जब पेनिस एंटर करता है वेजाइना में तो उस समय केवल इसको म्यूकस प्रोवाइड करती है जिससे इसमें लुब्रिकेशन अच्छा होता है. सो बार्थोलियन ग्लैंड्स का वर्क इतना है. मेमरी ग्लैंड्स क्या करती है? मिल्क का फॉर्मेशन करती है. किस टाइम पे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दे आर फॉर्मिंग द मिल्क. प्रेजेंट कहाँ पे होती है? थोरासिक वेंट्रल थोरासिक वॉल. एंड द साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट इंक्रीज होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स की वजह आफ्टर प्यूबर्टी. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट मीन्स द एस्ट्रोजन का लेवल जैसे इंक्रीज होता है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दे आर इंक्रीजिंग द साइज. सो वी डिस्कस अबाउट द डायग्राम. दिस वन इज़ द पार्ट ऑफ वेजाइना. लुक इट देयर. ये वेजाइना है. वेजाइना जो होता है वो आप देखिए यूट्रस जो है वो ओपन कहाँ पे हो रहा है? सर्विक्स. सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में. और यहीं से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो जाता है, बच्चा डेवलप हो जाता है तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये सर्विक्स का ओपन हो जाता है. ओपन होने के बाद ये वेजाइना के थ्रू डिलीवर्ड होते हैं. इट मीन्स वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं. दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा. इसे हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं इसमें सारे आपको पार्ट्स बता रही हूँ. ये वल्वा का स्ट्रक्चर है. ये एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है फीमेल का. सो एक्सटर्नल जेनाइटेरिया यू सी आप अपर साइड देख रहे होंगे. हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है इसे हम मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे जो मतलब उभरा हुआ पार्ट होता है जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट हैं. सो दिस एरिया इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस. नाउ दिस वन इज़ द क्लाइटोरिस. दिस वन इज़ द यूरेथ्रल ओपनिंग क्योंकि यहाँ से ही यूरिन पास आउट होता है. नाउ दिस वन इज़ वेजाइनल ओपनिंग एंड दैट्स वन इज़ कॉल्ड लेबिया. आप देख रहे होंगे दो लिप्स दिख रहे हैं इसमें. सो जो इनर एंड आउटर लिप्स ऑफ वेजाइना इट मीन्स लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा. मेजोरा इज देयर द थिक लेयर, उससे आउटर होती है जो. दिस वन इज मेजोरा एंड दिस वन इज देयर माइनोरा. टू फोल्ड्स आर देयर. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वल्वा. वल्वा के ये सारे पार्ट्स है. वल्वा में आपको फर्स्ट मॉन्स प्यूबिस है, भरा हुआ पार्ट जो होता है ये. सेकेंड इज देयर the clitoris. Third is urethral opening. Fourth is their inner and outer lip of vagina, and fifth is there the vaginal opening. So all this part of the vulva. So today my topic will complete in here. We will discuss our next topic in next video. Thanks for watching.